So I think my slides are visible to you. My slides are visible to you. Can you please confirm? Yes, sir. Okay, great. So, dear students, till date, I'm very happy that, and I must appreciate you all in spite of this lockdown period and online classes without, because we are all habitual to attend the offline classes, and you know that culture of our campus, friendly culture, to get remain mixed with our friend and to enjoy the institute culture, including sports, cultural events, everything you must be missing. Simultaneously, we are also missing uh, our classes, because to see students in front of us and to interact with them in front of us, both side mutual interactions. Everyday students were used to cross with teacher, then every functions, all those things also we all are missing. So the same situation is there from student side also and from teacher side also. But the situation is like this, that we are conducting online classes. And it is appreciable that whatever teacher is saying, the students are doing. Okay, that is the greatness of the students. And the show must go on. And we are running the show. But at the same time, teacher is also not compromising with the content which he has to deliver to the students as far as knowledge delivering process is concerned. Means you won't feel that there will be something missing in our online classes and in our offline classes. So we are trying our level best to provide you all the content of your subject which we used to deliver in the offline classes. So same time, many students, when I was just going through your notebooks, many students have, it is appreciable that many means all the students almost
have assigned a separate notebook for this subject. And you will see that some students may comment that, you know, 5 fingers are not same. I can understand. अरे यार टीचर को क्या लेन देना है अपने सेपरेट नोटबुक से, उसका क्या जाता है, हम कुछ भी करें ऐसा। ये बहुत सारे कमेंट्स होंगे या उनके मन में भी कुछ डाउट्स होंगे कि व्हाई पर्सनली लुक्स इनटू आवर नोटबुक। ओके, so it's basically not for the teacher benefit. Let me clear this particular important thing. Okay, students used to capture the photographs of the slides, and then he again used to study that thing later on. Then he used to just capture the photographs and share with all the students. That is okay. But if we have our personal notebook with us, and if we have a habit to extract a notes, small sticky notes type of content in our notebook, whatever teaching is delivering, whatever important thing he is saying. So at the time of examination, that important things you can frequently review, visit, and may be important and may be beneficial to write in the examination for the good score. So that is basically the benefit of the students. Otherwise, teachers का क्या जाता है, उसको क्या लेन देना है, वो तो पढ़ा के चला जाएगा, कुछ भी हो भाई हमको क्या लेन देना है। Are you getting important? So teacher is something playing a very important role. It is acting as a catalyst. Teacher क्या करता है, catalyst का role अदा करता है. The students for time being can feel bad, but for long term, for his career is concerned, it is in the benefit of the students. तो सीखने की यही दिन होते हैं, तो बाद में सिखाया नहीं जाता। ओके, मोल्ड होने के यही दिन होते हैं, बाद में मोल्ड नहीं हुआ जाता। इट बिकम्स ए रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट लेवल हम लोग जो कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बिंग कुछ भी चीज जो है वो खराब लगती है या उसका गुस्सा आता है या बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हम लोग बड़े होते हैं और डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में जब वो काम में आती है, जब अच्छी आदतें काम में आती है, तो फिर हमें हमारे बड़े लोगों ने जो बताया है, इवन हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, हमारे बुजुर्ग लोग क्यों ना हो घर के, और हमारे टीचर्स क्यों ना हो, उनकी यादें फिर याद आती हैं। वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो एवरीथिंग आई ऑलरेडी टोल्ड, एवरी टाइम, हर बार मैं बोलते रहता हूँ कि सभी चीजें पॉजिटिव लेनी चाहिए, पॉजिटिव रहना सीखो। मिस टीचर का डांटना है, मम्मी पापा का डांटना है, बुजुर्ग का डांटना भी पॉजिटिव, उसमें भी कोई छुपा है। गलतियां मत निकालो। गलतियां निकालने से क्या होता है, हमारी निगेटिव उसमें वैल्यू दिखती। Are you getting my point? So I must appreciate all the students that they have completed their notebook in a very nicely. They have also tried to attempt the different reaction schemes as I suggested, and this all will be really, I will assure you, this will be this will be beneficial for you as far as your terms examinations or coming examinations are concerned. ये 100% आपको काम में आने वाली चीज है। और मेरे सब्जेक्ट का मैं बता दूं कि जैसा मैं पढ़ाता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, and whatever is being delivered, whatever is being told, okay, the books which I usually told you to just refer. So if you really do that, you will definitely succeed and scoring a good marks in the examination. Okay, this is very important. Just follow what teacher is saying. 100% you will be getting success in your life, right? So we are going across, or we are
just going through the principles of formulations of mathematical modeling. And many times I am repeating that the principles of formulations of mathematical modeling जो concept है ये बहुत important concept है. So the first part, basis, how to apply the basis. So depending upon the problem statements, I am again repeating that what basis needs to be applied for that particular problem statement. Okay, so that will basically become a base, or it will start your modeling fundamentals, that how to proceed further with that. If it involves a mass, you have to apply the basis as a total continuity equation or total mass balance equation. If it involves a component associated with the chemical reactions, so it requires basis as a part of fundamental laws, component continuity equations. Try to understand what I'm saying. If it involves energy which is changing, okay, so different forms of energies are there. Potential energy, kinetic energy, okay. Wherever energy is involved, internal energy, every material has an internal energy. Everything in this world, whether it is stone, whether it is table, chair, book, living thing, non-living thing, any matter, anything, everybody has an internal energy. Okay, internal energies are in the form of vibrational, rotational and oscillations. ये चलते रहता है, चाहे वो कोई भी चीज हो. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. ओके, सभी जो चीजें हैं वो एटम से बनी होती है. एटम, ओके, एटम, ATOM, एटम, नॉट आइटम, ITEM, नॉट एटम, ATOM. सभी चीजें जो होती है इस यूनिवर्स में, कुछ भी आप देखिए, चाहे आप लिविंग देखिए, नॉन लिविंग देखिए, सब कुछ इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ए एटम. एंड वंस इट इज देयर, everything has an internal energy. So internal energy means, can you feel internal energy? No. It is in the form of vibrational, rotational oscillations. Okay. Are you getting my point? So internal energy चली जाना मतलब क्या? ये तीन चीजों का स्टॉप हो जाना. Are you getting my point? Internal, vibrational, oscillational, rotation. Every matter is having or supposed to have an internal energy. Then kinetic energy. Okay. It is related to speed from one distance to another distance to travel. Okay, kinetic energy. Potential energy. When there is a elevation from one to another one. Okay. पर्वत के ऊंचाई से नीचे की खाई, ये जो हिंदी में कहावत है, from the top of the hill to the bottom of the valley, that is called elevation. If there is a difference between elevation, potential energy comes into picture. Are you getting my point or not? So energy equations, whenever these all types of energy comes into the picture in the problem statement or wherever you find it for modeling purposes, you will have to apply. My voice is clear to you all? Is it clearly reaching to you? Can you please someone say yes? Great. Okay, thank you. So whenever these types of energies are involved,
we have to apply a energy balance equation as a part of our basis, as a part of the fundamental laws for the principles of formulations of the mathematical modeling. देखिए मैं बार बार देखिए आपको इन तीनों चारों चीजों को एक यूनिट लिंकेज कर रहा हूं, एक मैं सूत्र में उसको पिरो रहा हूं, बांध रहा हूं, ताकि आपको बार बार इस चीज आपके दिल तक पहुंचे, ये क्या है। तो सर ये एनर्जी इक्वेशन, टोटल कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास बैलेंस इक्वेशन के मतलब ये क्या है। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं क्योंकि आपके ये दिल दिमाग में उतर जाए कि दिस एनर्जी इक्वेशंस, कंपाउंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस, मास बैलेंस इक्वेशन आर ऑल फंडामेंटल लॉज, are all referred to as a fundamental laws. And why there is a need to again review these all fundamental laws? It may also possible that you might have gone through these types of fundamental laws ever before. But we need to apply these all laws as a part of basis, and basis is nothing but a part of our principles of formulations of modeling equations. Okay, please note this important thing. So wherever you find energy of any kind, of this, out of these three, internal, kinetic, potential energy into the system, you will have to apply this energy equation as a basis for further going ahead for the uniqueness of the mathematical modeling equation, for the formulation of the uniqueness of the mathematical modeling. And what is modeling equation? That modeling equation will be a systematic representation of any system. वो मॉडलिंग इक्वेशन क्या रहेगा? It will be a systematic representation of any system. और वो मॉडलिंग इक्वेशन क्या दर्शाएगा? It also reflects the behavior of that particular system or process. Okay? मतलब आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हो, किस तरीके से आपका फेस लुक रखते हो, इसके ऊपर जो स्कैन हो जाता है कि आपकी लाइक या आप क्या सोचते हो, आप किस टाइप के नेचर के इंसान हो, तो someone can assume or judge. It is called, it reflects the behavior of that particular system or process. तो जैसे आप चलते मॉडल्स, जैसे रैंप पे वॉक करते हैं, तो व्हाट बेसिकली दे आर मॉडलिंग फॉर, दे आर रिफ्लेक्टिंग their behavior through that costumes. So they are basically exposing the costumes, that these are the costumes, and that is something advertisement of that costumes or jewelry or something like that. That is also called models, because they are systematically reflecting you, or that systematically providing you the information in the form of advertisement by walking on the ramp. Are you getting my point? Modeling, ऐसे यही concept यही है. Okay, so modeling equation or model is basically describes the behavior of our system. It also reflects the behavior of the system. It is a systematical representation of any system or process or the things or whatever. So the energy equation states, let us go to our main important point or agenda. The flow of internal, kinetic and potential energy into the system. किसका फ्लो? फ्लो इसलिए है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. क्या है ये? डायनेमिक सिस्टम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए फ्लो ये चीज दी गई है. फ्लो इसलिए बोला गया है कि दिस इज अ डायनेमिक, बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ऑलवेज
represented with the help of associated with the time. It's a dynamic process, not a static process. Okay. डायनेमिक सिस्टम कभी भी टाइम पे डिपेंडेंट होती है, स्टैटिक इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम. दिस इज स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट. इसलिए फ्लो, ये टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी बैलेंस. फ्लो ऑफ इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू द सिस्टम बाय कन्वेक्शन और डिफ्यूजन. ओके. सो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे इंटरनल एनर्जी का फ्लो होगा या काइनेटिक एनर्जी का फ्लो होगा या पोटेंशियल एनर्जी का फ्लो होगा या इनके तीनों का कॉम्बिनेशन का फ्लो होगा, और मैं बता रहा हूं आपको, ओके, बाय कन्वेक्शन और डिफ्यूजन. ओके. सो फ्लो मतलब क्या? कन्वेक्शन और डिफ्यूजन इज ए मास और बल्क फिनोमेना. ओके. कन्वेक्शन और डिफ्यूजन क्या है? ये बल्क फिनोमेना है. ठीक है ना. ये फ्लो होगा, कंडक्शन फ्लो नहीं होगा. कंडक्शन, ये जो फिनोमेना है, ये फ्लो नहीं होगा. इट ट्रांसमिट इट्स हीट एनर्जी from one molecule to another adjacent molecule. I am talking about conduction. From next to next adjacent molecule, from next to next adjacent molecule, which are in physical contact with each other without displacement from its fixed position. Are you getting my point or not? कंडक्शन डिस्प्लेस करता है क्या एक जगह से दूसरी जगह पे? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन द कंडक्शन. इट कैनॉट फ्लो. इट कैन ट्रांसमिट from one molecule to another molecule, from another molecule to next adjacent molecule, from next adjacent molecule to the next adjacent molecule. This is something like that. That is why it is said that is why conduction is not mentioned here. Flow of internal kinetic and potential energy into the system by convection or diffusion. Okay. डिफ्यूज होना भी बल्क फिनोमेना है. ओके. जैसे घर के अंदर की हवा या एयर जो है बाहर के हॉट एयर से मिक्स हो रही है एक बल्क मास के साथ. ओके. इस तरीके का आपने ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दिया या गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दिया, ये भी क्या हो गया? कन्वेक्शन फिनोमेना हो गया. ओके. कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डाल दिया, डिफ्यूजन फिनोमेना हो गया, बल्क में डिफ्यूज हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंडक्शन में क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर वन, अनदर टू अनदर वन, थ्रू फिजिकल, which are in physical contact with each other without displacement from its fixed position. Then minus flow of internal kinetic and potential energy out of the system by convection or diffusion. मतलब flow of internal kinetic and potential energy into the system by convection or diffusion minus flow of internal kinetic and potential energy out of the system by convection or diffusion. Now इस दौरान क्या होगा? एनर्जी में whatever heat will be added to the system. Okay, that heat is also energy. That heat will be also energy. So जितनी इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में आई माइनस जितनी गई, ये तो चला गया इनपुट माइनस आउटपुट, सिस्टम बैलेंस हो गई. लेकिन सिस्टम के अंदर क्या फिर से क्या जनरेट हो रहा है? मान लो हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एडेड होगी ना बाय कंडक्शन, रेडिएशन एंड रिएक्शन. ये क्यों दिया गया है? मान लो आपको रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए,
to happen the reaction to a certain product, then you will need to supply the additional heat to the reactor through the external coil attached. Okay, जो कॉइल आपका रिएक्टर के अराउंड में आपने अटैच किया होगा, उस कॉइल के माध्यम से आप एक्सटर्नली उसको हीट देंगे। उसमें क्या करोगे आप, एक तो उसको हॉट वाटर डालेंगे और फिर अंदर का कंटेंट हीट करेंगे, या तो फिर अगर इंटरनली एक्सोथर्मिक ज्यादा हीट, एक्सेस हीट तैयार हो गई तो कूलिंग वाटर फ्लो डाल के उसकी हीट आप बाहर निकाल लोगे। वॉट एवर एक्सोथर्मिक हीट, एक्स्ट्रा हीट will be generated, will be formed inside the reactor, that will be taken off or taken away from that reactor to the external surrounding by giving a cooling water flow. Okay, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कंडक्शन, इसमें कंडक्शन इन्वॉल्व है, इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है, एंड इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व। रिएक्शन मतलब जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है जो हीट को प्लस और माइनस करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एडिशनल हीट का सोर्स है, ये एडिशनल हीट का सोर्स इसमें ऐड हो जाएगा। I have deliberately mute all of your mics because so that the disturbance should not be there. और मैं आखिरी में 5 या 10 मिनट में आपसे कुछ आपके क्वेरीज हो तो मैं आपसे बात करूंगा। Then whatever work done will be there. Okay, work done will be there. जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब वो भी क्या हो गई, वर्क डन करने की एनर्जी हो गई। वर्क डन मतलब क्या, आपने किया हुआ कार्य इज ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, बराबर है कि नहीं? आपको किसी ने कहा कि भैया ये बोरी जो है ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर को चढ़ा दो, ठीक है ना, आपकी पीठ पे कंधे पे लेते हुए, ठीक है ना। तो आप 3 फ्लोर चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद आप थका हुआ महसूस करोगे। इसका मतलब क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी, एनर्जी लॉस हो गई। फिर से बोलेंगे पानी दो, बोलोगे यार कुछ खाने को दो, मतलब यू विल ट्राई टू जनरेट योर एनर्जी। ओके, तो ये वर्क डन हो गया। तो ये सिस्टम में जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन जो भी हुआ उसको माइनस हो जाएगा ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से। तो ये वर्क डन क्या है, ये तो एक तो शाफ्ट वर्क होगा, या प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क होगा, या प्रेशर फोर्स टाइप का वर्क होगा। तो ये वर्क जो है, ये जो जितना भी वर्क डन होगा सिस्टम में ऑन सराउंडिंग, सिस्टम के माध्यम से सराउंडिंग के ऊपर, ये उसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब जैसे शाफ्ट वर्क होता है ना, जैसे कोई पिस्टन में आपका शाफ्ट एनर्जी इधर उधर करेगा, तो ये जो वर्क डन होता है वो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। तो ये सेम जैसे हम लोगों ने पहले बैलेंसेस देखे हैं, टोटल कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंपाउंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसी तरीके के ये बैलेंसेस हैं। हो सकता है कि एस टाइप के इक्वेशंस आपने कहीं देखे भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में आप इस यहाँ पे उसको देखेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं। ओके, so once again we'll repeat this equation because this equation is becomes very important equation for us in future to directly apply it for some systems, complicated systems also, for which we need to collect all these terms together and incorporate the terms into the this particular equation of energy balance. हम ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को इसलिए डिटेल्स में देख रहे हैं क्योंकि हर जो टर्म है यहाँ की,
ये हर टर्म को हमें प्रॉब्लम्स के हिसाब से इसको जनरेट करके कंपाइल करके इसमें डालना है, इसमें और एक फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म का इक्वेशन हमें बनाना है। इसीलिए to understand these concepts and this energy balance equation in detail term wise is very important. That is why such much time is being consumed on this, because it's a basic equation. So I think everyone may have got this energy balance equation very clearly, and I am also hoping that everybody, this equation must have reached to everybody's mind. Okay, let's apply this equation now for one problem statement. Is my slides moving? Please confirm me stating yes. Good. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, again take the same example of CSTR. देखो मजा किस बात का आता है कि एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग फंडामेंटल लॉज के साथ वेरिएशन करके, वो लॉज के हिसाब से वेरिएशन करके हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी नहीं होती। अगर हर फंडामेंटल्स के साथ अलग अलग वैरायटी ऑफ सिस्टम अगर ले तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए बार बार ल्यूबेन बुक ने ये कहा है, ल्यूबेन इज वेरी वेरी गुड बुक, बेसिकली आई लाइक दैट बुक वेरी मच, एंड दैट इज अ इंटरनेशनल रिनोन्ड बुक। एंड इफ यू गूगल द विलियम ल्यूबेन्स publications and all research in this regards, you'll find many of publications in this particular area of modeling and simulations. जैसे हमारे ऑक्टेव लेवेंसपाइल फॉगलर्स और काफी सारे लोग हैं केमिकल इंजीनियरिंग के मास्टर्स, तो उसमें से भी ल्यूबेन इज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ही इज आल्सो केमिकल इंजीनियर, वेरी सीनियर मोस्ट एजड पर्सनालिटी, बट नाइसली रिटन द बुक, एंड दिस बुक इज फेमस ऑल ओवर। अगर इस बुक को आपने ध्यान से और काफी अच्छी तरह से अगर आप डिटेल में पढ़ते गए तो आपको काफी सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग इस बुक से होगा। किसी को लगा कि बहुत सिंपल है ये, ऐसा नहीं रहता है। उसमें आप अगर डिटेल में जाओगे तो आप काफी अच्छी तरह से उसको महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये क्या चीज है। टेक द सेम एग्जांपल ऑफ प्रीवियस काइंड, CSTR system. So previously this CSTR we have taken for many of our systems for applying the different basic laws. This time हम लोग एक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं इसमें। क्या मॉडिफिकेशन है? एक कूलिंग कॉइल इनसाइड द टैंक। टैंक में क्या है, हम लोगों ने कूलिंग कॉइल लगा दिया है, ओके, दैट कैन रिमूव द एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन लैम्बडा, ओके, एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन लैम्बडा। ये जो एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन है ना, ये लैम्बडा जो है, जो इस हीट को बाहर निकालेगा अगर वो एक्सेस हो गई तो, ओके, और गेटिंग में पढ़ रहा हूं। So this may be also treated as a latent heat. Latent heat is the heat which is required to raise the temperature, but raising the temperature for changing its states from solid to liquid to gas, okay. तो जब उसका फेस चेंज करेगी उस दौरान जो हीट क्रिएट होती है उसको लैटेंट हीट भी कहा जाता है, उसको एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन लैम्बडा भी कहा जाता है। सो इस टाइम क्या कर दिया हम लोगों ने, और सेंसिबल हीट किसको कहेंगे? सेंसिबल हीट, इट इज द हीट दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू ओनली रेज or lower down the temperature of a substance.
ऐसी हीट, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। आपको ये सभी चीजें रिकॉल होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद आनी चाहिए। Sensible heat is the heat that must be required to just raise or lower down the temperature of the substance. Okay? थोड़ा सा पानी गर्म हो गया, आप देखते हैं कि गर्म हो गया, गार्गलिंग कर सकते हैं। कोरोना के दिन है, हमारे थ्रोट को जो है, थ्रोट में अगर स्वैब में कोई कोरोना के विषाणु है या वायरस है तो वो उससे किल होना चाहिए, किल हो जाएगा अगर सेंसिबल हीट, सफिशिएंट सेंसिबल हीट वहां पे है तो। क्योंकि all the viruses requires the neutral temperature, neutral atmosphere to survive or to sustain there in the system. If you change its atmosphere from neutral to the normal, or if you disturb their atmosphere, they can kill. They cannot remain active in the open atmosphere. That is called viruses. Okay. Viruses are not living legends. Okay. वायरस कभी भी लिविंग नहीं रहता, बैक्टीरिया कभी भी लिविंग रहता है। वायरस कब एक्टिव होता है? इट्स ए डेड टाइप ऑफ थिंग्स। वायरस कब एक्टिव होता है? व्हेन इट्स कम्स इनटू कांटेक्ट विथ योर प्रोटीन। आपके प्रोटीन में जब वो जाके बैठता है या किसी सेल से उसका अटैचमेंट होता है, तब वो ग्रो करना चालू कर देता है। ओके। अगर और वो फिर उसको क्या है कि न्यूट्रल एटमॉस्फेयर मिलता है, न्यूट्रल। लेकिन उसका अगर एटमॉस्फेयर हम लोगों ने चेंज कर दिया तो फिर वो वहां पे निष्क्रिय हो जाता है। और वही मैकेनिज्म होता है किसी भी वैक्सीनेशन का। ठीक है। स्वैब में 2-3 दिन रहता है, ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट ए वेल पर्सन, expertise person to talk on this issue, but just by virtue of my readings, which I have gone through many articles, I'm just sharing. सेंसिबल हीट के बारे में फिर से मैं बोलूंगा। सेंसिबल हीट इज द हीट दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रेज और जस्ट लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। थ्रोट में पानी से गार्गलिंग की, आपकी सेंसिबल हीट वायरस को पहुंच गई, अगर वो स्वैब उसमें होगा तो आपका वो किल हो जाएगा। लेकिन लेटेंट हीट इज द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। ओके। तो ये एक्सोथर्मिक हीट भी लेटेंट हीट के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज जब ये मैटर को चेंज कर देता है स्टेट में तो ये हीट बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है? हीट। ये हीट जो है, एक्सोथर्मिक हीट, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, and if it is getting excessive, that chemical reaction may lead to certain different products. So in order to avoid it and in order to maintain the certain temperature inside the reactor, that excessive heat needs to be taken away, and for that a cooling coil is being attached to the reactor, which can remove this exothermic heat of lambda, and the unit of this lambda is BTU per pound. BTU मतलब क्या? ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट। BTU का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ब्रिटिशों ने निकाला है टेम्परेचर यूनिट। इसको अभी भी वही वही बोलते हैं। इसको कैलोरी पर ग्राम बोलते हैं, जो कैलोरी, जूल। ओके। ये इन सब यूनिट्स को क्या ब्रिटिशों ने निकाला, इसलिए उन्होंने देखो स्मार्टली नाम रख दिया, ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट। कभी नहीं इंडियन टेम्परेचर यूनिट, ये इंडियन यूनिट्स कभी ऐसा कभी ये हुआ नहीं है। देखो किस तरीके से ये होता है। और calorie per gram moles of a reactor. Try to understand the unit, okay? We use normal convention that lambda is negative for an exothermic reaction. ये ध्यान में रख लीजिए आप। हम लोग नॉर्मल कन्वेंशन यूज करेंगे कि लैम्बडा जो है वो नेगेटिव रहेगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आप नोट डाउन करके रखिए, ये आपको पता भी होगा
और पॉजिटिव रहेगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये निगेटिव रहेगा इसकी वैल्यू है, even though it has been mentioned positive there as a part of representation, but its value will be negative. Okay, so minus 5100 calorie per gram moles of A reactor, इसकी जो वैल्यू होती है ये माइनस डालनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक वन, और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। ओके, नहीं तो जब आप इसमें जाओगे यूनिट्स में, तब वहां पे QG प्लस Q लिखा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो तो निगेटिव है, तो फिर वहां निगेटिव डाल ले। वैल्यू जब आप डालोगे वो निगेटिव में रहेंगे तो वहां निगेटिव डालना पड़ेगा, पॉजिटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव डालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम से स्पॉन्टेनियसली सोचते नहीं है, बाद में स्टडी करने का थोड़ा सा सोचते नहीं, बाद इमीडिएट बोल देते हैं कि सर वो तो वहां निगेटिव डालना पड़ेगा, और फिर वैल्यू, उसकी वैल्यू जो होगी, अगर एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी तो वो माइनस डालनी पड़ेगी, और एंडोथर्मिक की होगी तो पॉजिटिव डालनी। ओके, so this is something. So the rate of heat generation, energy per time. So ये तो रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या होगा, कितना रेट हीट जनरेट होगा पर यूनिट टाइम, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन जैसे होंगी उस तरीके से हीट जनरेट होगी, और वो जो रेट होगा, दैट रेट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A टाइम्स लैम्बडा। तो आपका जो ये हम लोग जो रेट लगाते हैं, कौन सा, रिएक्शन रेट का जो इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, जैसे A gives B, okay, A is consumed, B is forming. So while applying A is consumed, B is forming with rate constant K, तो उसमें जो आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A लगाते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ B, सो वो रेट का इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा, that is latent heat or heat of reaction associated, it will be associated with heat of reaction, that is referred to as the rate of heat generation. इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ हीट जनरेशन बोलेंगे, QG। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस बोलो, और नहीं समझ में आ रहा तो नो बोलो। So the rate of heat generation, energy per unit time due to the reaction, is the heat of consumption of A times lambda. ओके, तो जब भी आपको हीट जनरेशन की टर्म लिखनी है, तब आपको यह सोचना है कि आपको रेट इक्वेशन लिखना है और उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट जनरेशन, QG। ओके, ये सिंपल चीज आप ध्यान में रख लेना, चाहे वो A गिव्स B हो, चाहे वो A गिव्स B गिव्स C हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्कीम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको हीट ऑफ जनरेशन उस हिसाब से उसमें टैकल करके इन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कंफ्यूज होना नहीं है। सर ने तो फिर एक ही रिएक्शन के लिए बताई थी, माइनस लैम्बडा V KCA, फिर यहाँ तो मल्टीपल रिएक्शन स्कीम्स दी हैं, फिर ये तो पैरेलल और सीरीज सभी है, फिर ये मैं कैसा डालूं, फिर इसमें कैसे कैसे डालूं, क्या है उसमें, ये एक रिएक्शन के लिए है, A gives B विथ रेट कांस्टेंट K, इसलिए ये उसका कंजम्पशन हो रहा है A का फॉर फॉर्मेशन ऑफ द B, और एक्सोथर्मिक हीट फॉर्म कर रहा है एसोसिएटेड विथ लैम्बडा लिखा है। अगर वही मल्टीपल पैरेलल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्कीम होगी, उस हिसाब से रेट इक्वेशन होगा, एंड दैट रेट इक्वेशन होल इज मल्टीप्लाइड बाय द लैम्बडा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉट, ये डिस्टर्ब नहीं होना कभी भी। मान लो रिएक्शन स्कीम चेंज कर दी एग्जामिनेशन में, उस तरीके से उसको टैकल करना है। आई होप everybody must have got this point. Let us go ahead. So the rate of heat removal from the reaction mass to the cooling coil, okay,
My slide is visible. The rate of heat removal from the reaction mass to the cooling coil is minus Q, that is energy per time. Okay, so the rate of heat removal होगा from the reaction mass to the cooling coil is minus Q, that is energy per time. Okay, the temperature of the feed stream is T0. आपको दिखाई गई ना पीछे टेम्परेचर, ये देखो, ये जो ये इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में और ये जो माइनस क्यू के बारे में बोला है, तो वॉट एवर हीट विल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द रिएक्शन मास टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज माइनस क्यू. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द इनपुट स्ट्रीम बी T0, इसके बारे में बोल रहा है, एंड द टेम्परेचर इनसाइड द रिएक्टर इज T, रैंकिन और केल्विन. ओके, तो ये सारी चीजों के संदर्भ में राइटिंग our energy balance equation in the form of our parametric representation. Parametric representation मतलब अपने parameters, real parameters. Okay, F0 rho 0 into bracket U0 plus K0 plus phi 0. जब आप बोलेंगे क्या है नया, ये समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी लेके आते हैं उठपटांग. ये है आपका इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन, अगर ये तीनों एग्जिस्ट है तो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस काइंड फॉर विच वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द पैरामीट्रिक फॉर्म मैथमेटिकली बोला गया मतलब पैरामीटर्स की वैल्यू, पैरामीटर्स वहां पे रिप्रेजेंट कराना है. तो अगर इसमें से काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसको कट कर डालो फ्यूचर में, और अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी है तो उसमें रहने दो. पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बाकी दोनों है, तो दोनों को रहने दो, दोनों के इफेक्ट्स आगे ऐड ऑन करते जाओ. अब आप ये बोलोगे कि सर इसको इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके आपने F0 रो 0 जो कि हमारा मास टर्म है, F0 रो 0 कॉन्स्टिट्यूट्स और फॉर्म्स ए मास, इससे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? बिकॉज in order to tackle with the unit of energy, unit of energy क्या है? एनर्जी पर यूनिट मास. तो हमें ये जो पर यूनिट मास है इसको टैकल करना है, नलिफाई करना है. तो ये एनर्जी पर यूनिट मास और ये मास को कैंसिल करके ये है आपका मास पर यूनिट टाइम. टोटल एनर्जी बैलेंस, टोटल मास बैलेंस का इक्वेशन क्या है? टोटल मास पर यूनिट टाइम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये मास कैंसिल होके ये एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो आपके एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का जो ओवरऑल यूनिट रहना चाहिए वो रहना चाहिए एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो इन ऑर्डर टू हैव द यूनिट कंसिस्टेंसी वी नीड टू tackle all this for writing energy balance equation, and that is why the F0 rho 0 term, that is a mass per unit time term, is multiplied with all these energy balance equation. Okay, so this is input energy associated with time minus output energy associated with time plus whatever heat is generated and whatever heat is taken away, that heat will be added. Okay, even though their value may be negative, you need to put its value as a negative there, but whatever heat will be getting added, whatever work done will be there, that will be getting minus. चाहे वो आपका शाफ्ट वर्क हो, चाहे आपका फोर्स और प्रेशर टाइप का वर्क हो. फोर्स और प्रेशर टाइप का वर्क अगर वहां पे लगाया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो आउटपुट
minus input. Okay, are you getting my point? It must be equilibrium, or it must be balance there in the system. Otherwise force और प्रेशर अगर आपने कॉन्स्टेंटली बढ़ा दिया तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए जितना फोर्स और प्रेशर वहां पे दिया है उतना उसको बाहर आपको निकालना पड़ेगा. इसलिए ये फोर्स प्रेशर टाइप ऑफ वर्क, ओके, इसको यहाँ पे आपको बैलेंस रखना पड़ेगा. और ये सब आपका जो है ये वर्क डन होगा. और ये वर्क डन का यूनिट भी जो है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम ही रहेगा. इसका दोनों का यूनिट जो है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट? तो आप बोलेंगे सर ये फोर्स और प्रेशर का यूनिट एनर्जी पर यूनिट टाइम कैसे रहेगा? फोर्स और प्रेशर का यूनिट एनर्जी पर यूनिट टाइम कैसे रहेगा? तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द यूनिट ऑफ प्रेशर जो है इट इज ए डिराइव्ड यूनिट. ओके, ओके, बिकॉज